welcome everybody. Welcome to Drinker Talks. Welcome Arush. Let's start with a small intro about Arush. क्योंकि small जब मैं बोल रहा हूँ तो it's very difficult to make it small because right from your education इतने सारे उस पे लिखे हैं आपके मैंने जो प्रोफाइल देखा. I mean मेरा ख्याल है आप 50-60 साल लग जाएंगे मुझे इतनी एजुकेशन कलेक्ट करने में जितनी आपकी है. Not really. But I mean, your profile is full of education. You're, as per your profile, you're a multi-asset research analyst, and you have a great fan following. And you've joined just I think 2-3 years back. So इतने से टाइम में इतनी अच्छी फॉलोइंग है कि that's brilliant. So let's start with something about yourself. How did you reach here, and कैसे यहाँ तक की आपकी जर्नी रही? First of all, thank you for the kind introduction and giving me a chance to speak. Uh, First of all, about your question, how did it all start and how did I reach over here? So this journey started 8 years back when I had interest in financial markets, and that started with interest in bullion first because that was the only thing accessible to me back then. All other things like property required big ticket size, and equity markets required a demat account, and I wasn't even 18 back then. Okay. So I started first with bullion market Okay. because there are fractions of gold and silver which you can buy. So I started buying that, and in the journey, I learned about macroeconomics because it was around 2010 when I started my journey in stock. I started my investing journey, and that time silver had hit 75,000, Okay. and suddenly after that, silver fell from 75,000 to 45,000. Right. So I was puzzled why there's so much of volatility. Although I didn't suffer any losses as such, I was lucky enough to escape that bear market. Okay. But in the journey, I was very curious, like why is it all happening? So I started studying about policies of federalism, which are again very relevant in today's time. Hmm. How Federal Reserve's policy created the massive bull market of 2020 and 21. Hmm. People ask questions, right? How is there a bull market in India when all the business are suffering? So that happened because of big money printing policy of federalism. Hmm. Hmm. So in 2008 there was this Lehman Brother crisis, right? Yeah. Yeah. Again, it was like 2020 when there was a crash, and then they were trying to bring the economy back to normal, and they printed lots of money. Yeah. So gold was again a relevant asset class in that year, gold and silver. Hmm. Hmm. So I started with that. I learned macroeconomics from my failures and success in bullion investing. Right. Mm. Yes, and after that, I came into equity markets. Okay. Yes, I in my college days and in my 11th and 12th, they used to teach about this investing basics, Hmm. like Hmm. what is BSE and what is NSE, those Yeah. basics. Yeah. So at that time also, I was investing in stocks in my 11th standard, and I Okay. remember my investment in Shasun Pharma. There was a strike in uh, uh, that company. There was a strike, Hmm. and prices went down by 70%, Okay. and I bought those stocks, and that Okay. strike got resolved, and I Okay. earned smart 50% on that. So Okay. that was a very encouraging point. uh, why shouldn't I invest in equities? So I always wanted to do this. Hmm. And that nowadays you might have heard the name Star. So that is Strides Shasun Okay. combined Okay. entity today. Okay. Yes. Then So came my college.
आपकी जर्नी मुझे एक बहुत फेमस किताब है जो वन ऑफ माय फेवरेट, मैं अक्सर शो में नाम भी लेता हूँ उसका, जेसी हम्म। लिवमोर की कहानी है रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर बाय एडविन लेफलर। तो उसमें भी राइट। दैट गाय, द मेन प्रोटैगनिस्ट, ही स्टार्टेड अराउंड द एज ऑफ 15। तो हम्म। मुझे आपकी भी जर्नी कुछ वैसी सी ही वहीं से शुरुआत होती हुई लग रही है उसी एज पे। एंड ही इज एन आइकॉनिक पर्सनालिटी, आई मीन। ऐसा लग रहा है अच्छे रास्ते लग रहे हैं मेरे आगे। बिल्कुल, मतलब ऐसे स्टार प्लेयर। राइट राइट, so there are similarities, obviously when you start early ना, तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो पर या इम्पोर्टेंट है कि आप स्टार्ट जल्दी करो। आज काफी हम्म। सारे लोग हैं जो यंग एज पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो राइट। वेरी गुड कि दे आर स्टार्टिंग अर्ली, राइट। because you'll fail early, and या you'll not lose big amount of money when you या fail early, या and वहाँ पे जो आपका बेस बन जाता है फिर उससे आप एक बार सीख लिया, फिर आगे जाके you can invest big amount of money and your journey would be smooth, because at later stage of life लोगों को ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 40s में पहुंच गए या 35 में पहुंच गए, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अभी ये पैसा खो दिया तो बाकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर थोड़ी एज के बाद तो वो सोचते भी नहीं है रिस्क लेने का, कि अब रिस्क क्यों ले, बाकी सब फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग अर्ली, यू आर केयर फ्री एंड यू कैन डू एज मेनी मिस्टेक्स एज यू वांट। राइट। एब्सोल्युटली। हम्म। आई मीन आई कुडंट एग्री। तो आपने दिस इज ठीक है, आप उससे आपका बुलियन से शुरुआत हुआ, एंड देन तो स्टॉक मार्केट में अभी जो आप कॉल्स लेते हो, तो हम्म। एग्जैक्टली ट्रेडिंग का आपने कहाँ से ये एक्सपीरियंस गेन किया स्टॉक मार्केट में? So again, going back in the history, so when I completed my schooling and I was going into college, तो बीच में जो 2-3 महीने की छुट्टी होती है, उसमें आई यूज टू गो टू द क्रॉसवर्ड, एंड वहां जाके मैं टेक्निकल एनालिसिस की बुक मेरे को हाथ लग गई थी। तो ओके। वो मैंने, उस बुक का नाम था टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम ए टू जेड। तो उसमें ओके। सारे इंडिकेटर्स थे, आरएसआई थी, स्टोकेस्टिक था, मैकडी था, सुपर ट्रेंड था, बोलिंगर बैंड था, अब जो ओके। बोलो सब कुछ उसमें था। तो हाँ। मुझे, मैंने वो देखा उस बुक में, थ्योरी को अप्लाई किया, और मुझे उस वक्त अच्छी सक्सेस भी मिल रही थी। दिस वाज अराउंड 2000 प्रोबेबली 14। तो ओके। उस समय न्यू बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी, एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट, और वहां से बुल मार्केट स्टार्ट हुई। आई यूज टू रिमेम्बर कि वीआईपी एंड आई यूज टू ट्रेड दोस शेयर्स, दे यूज टू डबल in very less period of time. Even stock like Gati went almost 5x, 10x in a very short period of time. या Also, few shares like ISFT went almost 20, 30x in just 1 to 2 years. या So it was going good. I was applying the theory and it was going good. तो अभी जो मैं theory लगाता हूँ वो पूरा technical analysis के base पे है, और I catch momentum and it works. नाइस नाइस। तो क्या रहता है ये आपके सिस्टम में? जैसे आप क्या टेक्निकल, कुछ आपके फेवरेट इंडिकेटर्स हो या कुछ पैटर्न्स आप दैट यू प्रेफर, या कोई सेक्टर है जिस पे आप ज्यादा ध्यान देते हो? व्हाट इज योर सिस्टम लाइक? As my profile says, I'm a multi-asset analyst. So I try to concentrate कि global markets में क्या हो रहा है. I ओके। keep that in my equation. What are FI DIs are doing? मैं उसको equation में डालता हूँ. फिर मैं Indian market का trend देखता हूँ, ओके। right? फिर मैं उसको metals commodity market के साथ compare करता हूँ, और फिर मैं उसको crypto currency market के साथ compare करता हूँ. तो ओके। मेरे को एक clear picture मिल जाता है कि आज market में क्या होने वाला है. लाइक ये दिस इज आई थिंक आई एम हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि क्रिप्टो मार्केट को भी कोई अभी एनालिस्ट, आई थिंक इंडिया में अभी बहुत ज्यादा लोगों नहीं कर रहे हैं जो अपनी एनालिसिस में उसको भी जोड़ते हैं। हम्म। सो राइट। दैट इज समथिंग यूनिक, आई थिंक ब्रिलियंट। तो इसमें जैसे आपका अभी रीसेंट रिसर्च क्या कहती है, अभी जैसे ये जो रीसेंट स्विंग्स चल रहे हैं इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन होगा I'll tell पिछले you एक दो one हफ्ते में? या I'll tell you one short thing, that या Bitcoin market always leads equity markets. तो जब ओके। 2020 का क्रैश आया ना, तो उससे पहले बिटकॉइन क्रैश किया, राइट? ओके। सबसे पहले बिटकॉइन क्रैश हुआ, फिर जब इक्विटी मार्केट का बुल रन स्टार्ट हुआ था, उससे पहले बिटकॉइन बॉटम करके चल भी चुका था ऊपर की साइड। अगेन सेकेंड टाइम आपको उसमें वहां पे सिग्नल मिला कि मार्केट में क्या होने वाला है। अभी आपने देखा कि थोड़े दिन में इक्विटी मार्केट गिरी, तो चार्ट खोल के आप अभी देख लो, बिटकॉइन पहले गिरा, फिर इक्विटी मार्केट गिरी, अब वापस बिटकॉइन ऊपर चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ कल एफआई ने माल खरीदा है।
राइट। उन्होंने इंडेक्स में बाय किया है, हम्म। उन्होंने हम्म। इंडेक्स ऑप्शंस में बाय किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किया है। तो आई हम्म। गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर कि मंडे को मार्केट बाउंस बैक करेगा, और चार्ट्स में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम्म। अच्छा चार्ट पैटर्न बता रहे राइट। राइट। हैं। या तो अभी जैसे आप कुछ अब बात निकली है तो कुछ हम लोगों को भी हॉट स्टॉक्स बताओ ना कि क्या अच्छे रहेंगे मंडे के लिए। बता दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। आजकल ट्रेंड है ना, पहले तो पूछते हैं कि शैल आई टेल और नॉट, तो इसलिए पूछ रहा हूँ, बता दूं क्या? हाँ हाँ एकदम मतलब खुल के। So, one stock which is on my radar right now is Eris Life Science. They हम्म। declared their results on Friday, and chart structure is very positive. I see 10 to 20% upside in that stock. वाओ। हाँ, दैट्स नाइस। Eris एंड Life Science. Hmm. या प्लीज। Eris Life Science looks good. Ramco Siemens looks good. Then ABFRL from few months point frame looks good, like 1 to 2 quarter time frame. ABFRL looks good, which has exclusive franchise of Louis Philippe. Then all these branded stores. So again, a COVID recovery theme. राइट। Yeah. राइट नाइस। अच्छा, आई वाज जस्ट विजिटिंग टू योर प्रोफाइल्स तो मुझे वहाँ पे काफी एक ये दिखा कि आपकी कॉन्ट्रा कॉल्स काफी फेमस है। Okay. तो एनीथिंग यू कैन टेल अस अबाउट दैट। मतलब कुछ लोगों ने किया हुआ था कि आपकी मतलब काफी सारे प्रेजेस थे आपके लिए कि मार्केट चाहे मतलब कुछ किसी का कहना था कि यू आर द ओनली लीडिंग इंडिकेटर इन द मार्केट इन द स्टॉक मार्केट। किसी ने कहा हुआ था कि जिगरा आप में है कि कॉन्ट्रा कॉल्स देनी हो तो इसके जैसी हो, आरुष जैसी हो। Correct, correct. That's तो very kind of my Twitter friends that they appreciate my work and they like my work, and they also share good words about me. Um, this happened because I gave a buy call on IRCTC. ओके। When IRCTC was almost down 25%, I gave a buy call on Twitter with a stop ओके। loss that this is the best time to buy ओके। IRCTC. ओके। So because of that, and I think you should look for plays wherein you find extraordinary opportunities where risk reward is very favorable. In case of IRCTC, you had almost 70% downside, 60% downside from the top. Now, if stock reverses, your risk is very less, but your upside could be phenomenal. That's या। why I gave a buy call on that. Stop loss was limited, but upside was almost 20-30%. And it shot up 15%, 20% from the bottom. So these are very great opportunities. I even gave buy call in March 2020. If you look at my pinned post on my profile, so I gave buy call on Nifty on 30th March, and stock market bottomed on 24th March, just 6 days राइट। after that. And I gave target of 14,000 on Nifty when it was trading at 8.5K. दैट्स रियली आई मीन दैट्स रियली कूल। थोड़ा सा और मैं मतलब इसकी प्रोसेस क्या रहे मुझे और थोड़ा डिटेल में बताओ प्लीज। आप कैसे क्या व्हाट व्हाट डू यू सी इन चीजों में, हाउ डिड यू लेट्स टेक अप आईआरसीटीसी एंड दिस थिंग ओनली कि आपने बताया कि डाउन साइड इसमें काफी कम था एंड वो था, बट देन हाउ डिड यू नो कि दिस हैज बॉटमड आउट एंड देन दिस इज नॉट जस्ट ब्रीदर नहीं ले रहा है वो। Because फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ट्रेडिंग एट सपोर्ट्स. आप अगर उस पे मूविंग एवरेजेस प्लॉट करोगे, 100 ओके। पीरियड की, 200 पीरियड की, 50 पीरियड की, तो आपको सपोर्ट पे दिखेगा. ठीक है. ओके। सेकंड, वो एवरेज ट्रू प्राइस पे आ गया था पिछले महीने के बार की. ओके। ठीक है. तीसरा, बहुत ज्यादा मीन रिवर्ट हो गया था वो, एक तो. ओके। ठीक है. और चौथा, एक्सेसिव उसमें सेलिंग आ गई थी. सो देयर वाज नो बडी लेफ्ट टू सेल मोर बिकॉज एवरीबडी हैड सोल्ड इट. या। राइट। So these four things made me believe that probably the stock has bottomed out, and it played out in my favor. राइट। राइट एब्सोल्युटली मतलब आई थिंक उसी दिन द वेरी दैट डे उसने काफी अच्छा जूम आउट किया था। Hmm. Absolutely.
Yeah. तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हर एक को लुकआउट करनी चाहिए। इवन सेम मैंने दीपक Hmm. नाइट्राइट में सेल कॉल दिया था Hmm. एट 2800। Hmm. अगर आप मेरी Okay. प्रोफाइल को देखोगे तो Yeah. 2800 के आसपास मैंने ऐसा बोला था कि प्रोबेबली मीडियम टर्म टॉप इज वेरी Hmm. नियर इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड टाइम। और वो Hmm. अगले एक हफ्ते में टॉप आउट कर गया 3000 को छू के। और अभी आप Hmm. उसका भाव ऑलमोस्ट 2200 2300 छू के आया। तो टॉप Okay. से आप देखो तो 600 रुपये का करेक्शन मतलब 30% का हो गया मेरे भाव से। Hmm. और टॉप Hmm. से देखोगे तो ऑलमोस्ट 35-40% करेक्शन हो गया। 30% Hmm. करेक्शन हो गया। Hmm. नाइस नाइस। अच्छा, आई थिंक आपने रिसेंटली एक और टेक कंपनीज में भी शॉर्ट कॉल दिया था। हाँ, सो राइट। व्हाट वाज योर एनालिसिस बिहाइंड दैट? Tech companies, I was looking at the charts, and if you look in terms of overbought and oversold zones, so it had similarity to times like 99 2000 times of dot com bubble. ओके। So it had reached that kind of overbought zone that any correction from there could have resulted in good correction. And we didn't have as euphoric times for tech as in dot com bubble, but we had a lot of frenzy in that specific sector. And charts were saying that in terms of RSI, if you look at RSI, it was above 80 on various time scales. And ओके। everybody knows that from sorry, everybody knows that when RSI goes in overbought zone and then it corrects and there's a price confirmation, then you can see good correction. So IT राइट index has corrected 20% from the top, राइट। and specific stocks have corrected big time. ओके। सो अभी आपका ये करंट, अभी आपको क्या लगता है टेक का कब तक चलेगा ये करंट सिनेरियो? हेलो। Hello. या सो आपका ये कितना, क्या आपका टर्म व्यू क्या है इस पे कि जो ये करेक्शन है कब तक चलेगा टेक में? Uh, Tech, I haven't recently looked at it because I squared off my contract after October expiry. ओके। I sold options on that. So I ओके। haven't recently viewed that index, but I believe, st- sorry, I believe like stocks like TCS would take time to cross 4000 levels. ओके। ओके। Yes, ऑलराइट। अच्छा, कमिंग बैक टू, हम लोग थोड़ी पहले कहते हैं आईआरसीटीसी पे आपका जो अभी करंट व्यू है वो क्या होगा? मतलब दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन टू आस्क दीस डेज, आई आस्क एवरीबॉडी कि क्या होने वाला that is hot favorite. है। That is hot favorite stock of the market या right now. Darling turned into probably somebody else. इंडिया uh, का डोग कॉइन है वो। so, हाँ, probably few days back. अभी तो किसी के लिए वो नहीं रहा कुछ भी. Because people got screwed big time in IRCTC. Buy किया तो फंसे, sell किया तो फंसे. या एक दिन 10% डाउन, अगले दिन 10% अप. या। तो IRCTC में अभी अभी बॉटम हो गया है, शॉर्ट टर्म बॉटम। until and unless levels of 650 are not breached, वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा और ऊपर की साइड जाएगा। ओके। अच्छा, डू यू थिंक, डू यू ट्रैक एनी फंडामेंटल्स एज वेल, और इज इट मोस्टली जस्ट टेक्निकल एनालिसिस दैट यू डू? Mostly technical analysis, but sometimes I'm aware which stock has good fundamentals and a little bit of common sense investing. राइट राइट। For example, in case of ABFRL, I believe charts are showing a good picture, and I know that they have this exclusive license of these good brands like Louis Philippe and other branded stores. So I apply common sense investing over here that this stock can do well. ओके। I don't go deep into fundamentals. ओके। I just listen to some experts on the TV where they talk about various themes. So I'm aware like what is happening. या या। That's it. ओके, सो जैसे अभी आईआरसीटीसी में इसका, माय माय व्हाई आई केम टू दिस वाज कि आईआरसीटीसी में जैसे अभी गवर्नमेंट का एक मतलब एक काइंड ऑफ स्विंग आया कि पहले उन्होंने बोला रेवेन्यू शेयरिंग का, इफ यू
covered that news कि पहले revenue sharing 50-50 होगा and then they turned that decision back. So do you Hmm. consider such factors in your analysis? Yes, I was aware that they have taken away that they have taken the exclusive monopoly status of IRCTC as they Hmm. are going to take 50% of the revenue. Hmm. Sorry. Again, as you look, when stock price has fallen and there's also bad news, then price has already baked in that bad news. Hmm. So there's nothing to worry as of now. There was worry when stock was falling and there wasn't any news, Hmm. and I was very relieved when Hmm. this news came out Hmm. because I knew now it's baked into the price. Actually हाँ वो discount already हो चुका था I think जब तक news break हुई इसकी पूरा. I mean the एब्सोल्युटली इसी वजह से तो इतना गिरा. yeah yeah इसी वजह से वो इतना गिरा क्योंकि इनसाइडर्स ने बेचना चालू कर दिया था. right इनसाइडर्स को पता होता है right. कि उनको तो बता दिया होता है ये न्यूज़ आने वाली है, तो अपने सर्कल में बोल देते हैं Hmm. जितना बेचना है बेच, तो अभी तो ये गिरने वाला है. तो उन लोग ने तो शॉर्ट सेल भी किया ही होगा Hmm. और Hmm. इसलिए प्राइस गिर गया और एकदम बॉटम पे न्यूज़ आई. Right. तो फिर तो उसके बाद कुछ बचा नहीं है. नो नेगेटिव ट्रिगर्स एज ऑफ नाउ. Yeah yeah तो अभी के लिए एक और इसको देखने का नजरिया ऐसा है कि इतना गिर चुका है प्राइस Hmm. कि अब और क्या नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है. हाँ ये भी. ऐसा इससे ज्यादा तो और गंदा क्या हो सकता है. जैसे अभी कोविड का केस आया. हाँ, अभी कोविड का केस आया, ठीक है. Yeah. तो प्राइस मार्केट इतनी ज्यादा गिर गई थी. Hmm. फिर बाद में कोविड का पूरा सीन आउट हो गया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये परसिस्ट कर सकता है. Hmm. और फिर बाद में यू शुड बिलीव कि भाई इतना गंदा हो गया, अभी इससे गंदा तो क्या हो सकता है. Hmm. अब ये एक ऐसे जोन में आ गया जहाँ पे यू फाइंड वैल्यू इन द मार्केट. Right. ऐसा होता है सीन. Right. Right. अच्छा आपने अभी रिसेंटली आई थिंक ट्रिंकर पे भी एक पोर्टफोलियो अपना क्रिएट किया है एंड आई सी अभी तो हम्म. आपने आई थिंक उसमें बस एंजल ब्रोकिंग में ट्रैक कर रहा था आपका पोर्टफोलियो तो आई थिंक शायद आपने एंजल ब्रोकिंग लिया एंड देन क्विकली उसका शॉर्ट टर्म में ही रख के शायद सेल ऑफ किया. No, हाँ I bought IRCTC ओके आई and I sold IR. ओके ओके अच्छा तो उसी को ही आपने. Then I bought Adani Group stocks. ओके ओके तो अभी उसका उसमें कुछ आपके दिमाग में चल रहे हैं क्या स्टॉक्स अभी हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में उसमें. हेलो. I want to add Eris Life ओके Science. राइट अभी आपने जो. That looks हम्म. good. यहाँ से 10 to 20% मेरे को अपसाइड दिखता है वहाँ हम्म. पे. Then these cement stocks are doing well as a हम्म. theme. Ramco Cement is leading that. Then Sagar Cement is doing good. Shree Cement is doing good. Ambuja Cement is doing good. So cement theme looks good. Then liquor themes also looks good. इसमें आपका मैकडॉवेल अच्छा कर रहा है. फिर फिर जीएम ब्यूरी अच्छा कर रहा है. तिलक नगर इंडस्ट्रीज अच्छा कर रहा है. तो ऐसा दिख रहा है कि पूरा थीम ही अच्छा कर रहा है. राइट तो two themes which has some legs on the upside. Then specific stocks में I like Mannapuram in finance. हम्म. Yes. ओके नाइस नाइस अच्छा लिकर में एक और है पाइंड. उसका एनएससी पे कोड है PIONDIST. वो भी 8% प्लस हम्म. था एनएससी हम्म. पे. तो इसमें ये दो मेरे को एक ऑब्जर्वेशन दिखी कि ये दो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं मार्केट हम्म. में. So I think these sectors have legs on the upside. नाइस नाइस And real estate also looks good. नाइस आपके काफी सारे मेरा ख्याल है रडार में अभी आप जैसे ही बनाओगे मेरे को उसको फटाफट कॉपी करना है आपके पोर्टफोलियो को. मंडे को आप जल्दी से बनाओ मैं उसे कॉपी करूंगा. अभी आई थिंक टाइम भी अभी बिल्कुल भी. थोड़ा आप कह रहे हो मंडे से वापस आप आने वाला है फिर तो और मजा आएगा कॉपी करने में. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा प्री ओपनिंग में ही बाय कर देना. सॉरी आई डिडंट गेट यू कैच. प्री ओपनिंग में ही बाय कर हाँ हाँ देना. एक आप बाय नहीं आप तो ट्रिंकर पे बनाओ उस पे स्टॉक्स डालो मैं सीधे कॉपी करूंगा. ठीक है, ठीक है. अच्छा दैट्स अ गुड फीचर आई हाँ आई थिंक. मीन इसीलिए बनाया सी मैं खुद ठीक ठाक ही हूँ मेरी कोई मैंने खुद के स्टॉक्स चुन के कभी कोई बहुत पैसा नहीं बनाया तो आई एम हैप्पी विद ट्रिंकर के पोर्टफोलियोज कॉपी करने में उसमें मेरा बहुत प्रॉफिट होता है. तो दैट्स गुड, दैट्स गुड. राइट
I'm happy, and public is happy if you're delivering a good product. Yeah. सब गुड प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, आप ही हो हमारे स्टार ट्रेडर्स, वही है हमारा असली सब कुछ जो है, तो आप ही हो जो सबसे बढ़िया हो. नहीं नहीं, हम सीख रहे हैं अभी, वी आर आल्सो स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट. एवरीबडी इज, मतलब दैट्स समथिंग दैट गोज ऑन अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. राइट. अच्छा, अभी रिसेंटली हमारा कुछ एक ग्रुप्स भी हैं ट्रिंकर के, तो उसमें एक डिस्कशन चल रहा था इंटरेस्टिंग कि पीएसयू स्टॉक्स इन द कमिंग डेकेड. सो वन ऑफ द व्यू पॉइंट्स इज कि उनको फायदा है कि मतलब थोड़ा मोनोपोली वगैरह है, थोड़ा इग्नोर्ड रहे या अंडर वैल्यूड हैं, और ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा ये भी कि प्राइवेटाइजेशन है, थोड़ा ये सब है. तो इस पे पीएसयू स्टॉक्स पे आपका इन जनरल डू यू हैव अ व्यू आने वाले मीडियम या लॉन्ग टर्म में? सो पीएसयू स्टॉक्स आर ऑलवेज मोमेंटम प्ले. आपको मोमेंटम मिलता है तो बाय करो, मोमेंटम लूज हो जाता है तो छोड़ दो. दे आर नॉट लाइक एवरग्रीन ओके. स्टॉक्स. राइट. ये एक एक्सेप्टेड आइडिया है, एक्सेप्टेड ट्रैक रिकॉर्ड है कि पीएसयू स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है ग्लोबली. ओके. नॉट ओनली इन इंडिया, दूसरी कंट्रीज में भी ऐसा ही होता है, कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती ओके. है. एंड आईआरसीटीसी का ही हाँ केस हाँ. देख लो आप. राइट. अभी कोल इंडिया जब लिस्टिंग हुआ था, इट वाज लाइक अ ब्लॉकबस्टर आईपीओ, और उसके बाद उसने कोई भी रिटर्न नहीं हम्म. दिया है. हम्म. ठीक है. आप बाकी ये भेल वेल को देख लो, एक टाइम में वो 2003 टू 8 में स्टार परफॉर्मर था. अभी कुछ किया नहीं है, उसने रिटर्न नहीं दिया है. तो पीएसयू स्टॉक्स में कैसा होता है कि आप मोमेंटम को राइड करो, फिर आपको छोड़ देना चाहिए उसको. ओके. लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते अभी. आप जैसे देखो, कोल की शॉर्टेज आई, कोल इंडिया शॉर्ट अप हो गया, और ये पावर सेक्टर शॉर्ट अप हो गए. तो वो थीम के हिसाब से आपको चल रहा है. हम पावर सेक्टर में इतनी सारी कंपनीज है गवर्नमेंट की, वो अच्छा करेंगी अगर पावर का थीम चलता है ना, एक साल, एक दो साल, तो ये सारी पावर की कंपनीज अच्छा करेंगी. चार्ट्स पे भी दे आर लुकिंग गुड. It sounds good. That's Yes. So you have to play it by theme, you have to play it by momentum. hmm. Hmm. And you have to be very careful about your exits as well. Hmm. Hmm. That's really insightful. Yeah. अच्छा, हम लोग के कुछ listeners हैं who have some who have requested, तो let's take a few questions from the audience if you are up for it. Absolutely, I would love to. Okay. हमारे साथ अनु है. I'll just hello. Anu, are you there with us? Anu, आप mute पे हो. Yes, hi. Yeah. Please go ahead, ask your question. Hello. So, Arish, I just have a simple question. How do you see Bandhan Bank technically on charts? It has, I think, yesterday reported a very bad results also. But what does it look technically like to you? Um, so Bandhan Bank is actually in a downtrend, long-term downtrend. When it came at time of IPO, it was around 455, and from that level it shot up to 719, and from there it came down to almost 152. Then there was an attempt at Hello. 424. Hello. Yeah, Prashant, we'll just get to you. Let's Sure, discuss Anu's sure, question sure, first. sure, sure. Yeah, Sorry. yeah, yeah. So Bandhan Bank made an attempt in January 2021 at levels of 430 levels, and the recent attempt was till 350, and that failed, and price sold off from that level. So I would suggest this stock isn't a good idea from long term perspective. Better switch to better stocks like Kotak Bank or HDFC Bank. In banking and in finance, Mannapuram looks good. Okay, thank you. Thank you for asking a Thank question. you, Anu. Yeah, Prashant, you can go ahead, please. I am unmute. Can you hear me? Yeah, we can Yeah, hear yeah, you. you're audible, Prashant. Hi, Ayush.
Big fan of you. Hello. Thank you, my friend. I have asked you many times about Lakshmi Organic, Okay. but Uh, as per your expectation, chemical sector will not done good in near future. correct, correct. And So yes, that please Darshan continue. Mehta is also I am big fan of him. Darshan Mehta of ET Now channel. He he suggested all the good stocks on Telegram channel, and every stock that he suggested will gonna bumper return in short time. So as you also, I am also following you. So just you have to today you have told about the liquor stock. I am holding United Spirit, McDowell, Okay, right? And bought Bharti Airtel uh, on Friday. okay. Both recommendations by Darshan Mehta, and both have done almost. I am in profit. So what your expectation about Bharti Airtel and McDowell? Okay. So Darshan Mehta definitely gives very good Really, stocks, and really. I request all of you to follow him. He is masterclass with that. right. So McDonald's looks good to me. I think, as I said earlier, liquor stocks have more legs to it. McDonald's can go up 5% from here. Awesome. Thank you प्रशांत. Thank you आरुष. रॉकेट हमारे साथ हैं. रॉकेट रुपया. रॉकेट आप म्यूट पे हो. Okay, hello. Yeah. Okay, okay. Hi, Arus. अभी जैस Hello. हेलो, कैन यू हेयर मी? Yes, yes. ओके, जैसे कि अभी मार्केट में दिवाला निकला हुआ है, ठीक है, मार्केट डाउन जा रहा है काफी, बट आपने ये कैसे कंक्लूड करा कि जो मार्केट है इतना मतलब नीचे गिर सकता है, मतलब 1000-1500 पॉइंट जो है, आपने मतलब कैसे कंक्लूड करा, आप इस पे मतलब कैसे पहुंचे इस लेवल तक, मतलब आपने कैसे निकाला ये सब? राइट। आप मेरे वो प्रीवियस पोस्ट की बात कर रहे हो जहाँ पे मैंने बोला था कि 500 से 1100 पॉइंट गिर सकता है हाँ मार्केट। हाँ, जिसमें मैंने करेक्टली आई थिंक प्रेडिक्ट किया था एक्सपायरी का, मेरे लेवल पे एक्सपायरी एग्जैक्टली क्लोज हुआ था वहां पे, बट मैंने आपको ट्वीट देखा तो उसमें आप बता रहे थे कि 1000-1500 पॉइंट गिरेगा अभी और, तो बस वही जानना चाह रहा था, मतलब हाउ राइट, डिड यू कंक्लूड दिस, मतलब पॉइंट आपने कैसे निकाला था, वो थोड़ा सा मतलब नॉलेज लेना चाह रहा हूँ इस चीज के ऊपर मैं। राइट। तो मैं एक्चुअली निफ्टी को बहुत टाइम से स्टडी कर रहा हूँ, 1-2 महीने से स्टडी कर रहा हूँ। तो 1-2 महीने से मैं पूरी हिस्ट्री देख डाली, हर्षद मेहता टाइम तक मैंने पूरी निफ्टी की हिस्ट्री देख डाली, जो भी टीम ट्रेडिंग व्यू में आती है। मैंने सारी की सारी स्टडीज पूरा उसका डेटा छान लिया था, और मैंने उसमें कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन देखे थे जिसमें क्या होता था कि एक बार निफ्टी ने टॉप बना दिया तो वो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट, 500 पॉइंट तो गिरता ही है 100%, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 2000 पॉइंट भी गिरता है। तो मैंने वही बोला कि मेरे डेटा के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि निफ्टी में 500 से 1100 पॉइंट का करेक्शन इसी वीक में आता है, और इतनी सिमिलैरिटी उस डेटा में, इतनी सिमिलैरिटी कि डॉट बाय डॉट, डे बाय डे वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। तो तो उस हिसाब से मैंने कंक्लूड कर अच्छा, दिया। उसके लिए कोई चार्ट्स वगैरह, कोई इंडिकेटर्स वगैरह आप मतलब यूज करते हैं, या फिर मतलब वही टेक्निकल्स वगैरह, कैसे मतलब थोड़ा सा? देखिए, मेरा एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला मैंने उसमें यूज किया था, पर आप उसमें, मैं कहूँगा आपको चार्ट्स में आप कैंडलस्टिक्स को कंपेयर करिए, ओके और आप काफी इंडिकेटर्स अपने डाल के देखिए, तो आपको कोई ना कोई में इंडिकेशन मिल ही जाएगा, आप कोई भी यूज कर लीजिए, ओके कोई इशू नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि मेरे इंडिकेटर में ही आएगा। ओके, थैंक यू सो मच Thank, फॉर टाइम। thank you रॉकेट. उमेश हमारे साथ हैं. थैंक यू। उमेश are you there? Yes, hi Arush. हेलो, Yeah, Umesh, please go ahead. हाय आरुष। आरुष मेरे को मैं-
मैं जस्ट ये मेरे को ये कंफर्म करना था कि जो मेटल सेक्टर है, मेटल है, फार्मा है, तो ये मार्केट करेक्शन होने से पहले ऑलरेडी करेक्टेड मोड में हो चुके हैं, करेक्टिव एक्शन में आ चुके हैं। तो अभी यहाँ से क्या कुछ दिख रहा है रिवर्सल ये मेटल और फार्मा में? हेलो उमेश भाई, कैसे सर हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो मेटल स्टॉक्स में कैसा है कि जो कमोडिटी मार्केट में होता है ना, वही निफ्टी मेटल इंडेक्स में अगले दिन होना चालू हो जाता है। ये जिंक का टॉप बना, उसके बाद मेटल इंडेक्स टूटना चालू हो गया। जिंक और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा गिरे, इसलिए स्टॉक्स लाइक वेदांता बहुत गिर गए, वेदांता हिंडाल्को, राइट। अभी मेटल इंडेक्स में एक एनएमडीसी सेक्टर है जो अच्छा लग रहा है। ओके 5% जो उसका बेस है अभी रिसेंटली नीचे 5% नीचे, उसका बेस अगर होल्ड करता है तो एनएमडीसी कैन डू वेल। मेटल इंडेक्स मैंने अभी ग्रेट। देखा नहीं है और प्रॉपरली, पर स्पेसिफिक स्टॉक इन दिस सेक्टर लुक्स गुड। हम्म। अब जैसे फार्मा भी रिवर्सल मोड में आ रहा है, जैसे ल्यूपिन है, डॉक्टर रेड्डी का अच्छा एक सपोर्ट लेके लेवल से ऊपर आ रहा है, तो आपको फार्मा सेक्टर में क्या आपका व्यू है? Definitely, pharma again a good observation by you. Looks like a reversal candidate. इसमें Lupin looks good. Biocon also looks good, and other stocks like Eris Life Science also look good. So good times ahead for pharma. और हमने न्यूज़ भी देखी कि चाइना में अभी कोविड का भी रिसर्जेंस हो रहा है, तो गोइंग हैंड इन हैंड विद न्यूज़ एंड द चार्ट्स। ओके, थैंक्स अ लॉट आयुष। Thank you, Umesh. थैंक यू। वेलकम। Yeah. Shubham, please go ahead. Hello Arush, how are you? Uh, am I am I audible to हेलो, you? वेरी मच Yeah. ऑडिबल। Last year you recommended me Global Spirit on your platform at around 240 levels. I am still holding it, and it has given me 6x returns. What are your views on Global Spirits going ahead? And one more question I have. Should I continue with my question or will you answer it first? Yes, continue. Hello, Arush. My question was like, है ना, suppose I have built my portfolio of suppose 12 stocks, 13 stocks, है ना, and those are very good stocks. Like 4, 5 are from large cap, 2, 3 from mid cap, and 2, 3 from small cap. Now what happens कि we are in our accumulation phase. मतलब ऐसा क्यों नहीं कि भाई हम उसी में accumulate करते जाएं उसी स्टॉक को. मतलब लाइक अपना क्या है ना, अपने को कोई ट्विटर पे, कोई टेलीग्राम पे कोई एक स्टॉक के बारे में बता देते हैं, तो अपन फिर उसको भी नए नए स्टॉक में एंट्री करते रहते हैं. तो ऐसा मतलब डू यू थिंक कि लॉन्ग टर्म के लिए इट्स बेटर कि है ना, जो अपना जो कोर पोर्टफोलियो है 10-12 स्टॉक का, उसी को अपन एक्यूमुलेट करके बढ़ाते जाए, बड़ा बनाते जाए, रेदर देन है ना कोई भी किसी भी है ना एनालिस्ट ने या किसी ने कोई स्टॉक को रिकमेंड किया तो अपन उसको भी उसको एंटर करते जाएं और अपना है ना नंबर ऑफ स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो बढ़ाते जाएं. सॉरी फॉर बीइंग टू लेंदी. Okay. Okay, first of all, congratulations on multi-bagger returns on Global थैंक यू Spirits सो and मच. for practicing such थैंक यू सो मच. मैंने very few आपने people have आपने practiced ग्लोबल it. स्पिरिट का मेरे को मेल भेजा था, मुझे याद है. एंड है ना अगले ही दिन वो अपर सर्किट में था, फिर भी मैंने उसे बाई किया था. 245 के अराउंड मेरा वो बाइंग प्राइस था. Yeah. Right. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पार्टी देनी पड़ेगी सबको इस ग्रुप में। बताओ कब कहाँ मिल रहे हो? राइट, जस्ट जोकिंग। तो ग्लोबल स्पिरिट लुक्स गुड, मतलब काफी ओवरडन हो गया है वो थीम, तो अभी क्या थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर वो वापस चल सकता है। ओके इस तरीके से आई एम लुकिंग एट इट। ओके. एंड कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन कि 13 स्टॉक्स अक्यूमुलेट किए फिर कैसे करना चाहिए, मतलब इसमें कैसा है कि अभी मार्केट गिरा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने दूसरे के स्टॉक रिकमेंड किए हुए ले लिए, अब वो मेरे पल्ले पड़ गए, अब छूट नहीं रहे हाथ से। ऐसा हर एक के साथ हुआ होगा, क्योंकि इधर उधर किसी यही ट्रेंड चल रहा था, दोस्त ने बोल दिया ये ले लो, उसने बोल दिया ले लो, हाँ जी, तो हाँ जी. सब लेके बैठे थे, सही मार्केट चल भी रही थी। सही बात है. अब क्या है, मार्केट नीचे आई है तो सबका 10-20% नीचे चले गए स्टॉक, तो दे आर हैविंग दिस फीलिंग। तो
बुल मार्केट में दे फील हाँ वो जो बोल रहे हैं सही है, आई शुड फॉलो इट, एंड बेयर मार्केट में लगता है वो जो बोल रहा था वो गलत था, तो यू आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट। इसमें आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना आपका सॉल्यूशन है। आप स्टॉप लॉस रख के काम करोगे तो उस मार्केट में भी विन करोगे, इस मार्केट में भी विन करोगे, बुल बेयर मार्केट दोनों में करोगे। और कोर पोर्टफोलियो बना के चलना है तो दैट इज ऑल्सो अ गुड अप्रोच। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि एक ही अप्रोच से आप विन कर सकते हो। अगर इन्वेस्टिंग करके चलना है तो इन्वेस्टिंग करके चलो, और उसमें भी प्रिंसिपल फॉलो करो तो आपको सक्सेस मिलेगी। और मोमेंटम पोर्टफोलियो फॉलो करना है तो वो भी करो, बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो तो ही सक्सेस मिलेगी दोनों सिनेरियो में। एंड बाय बोथ वेज यू कैन विन इन स्टॉक मार्केट, ऐसा है। बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। शुभम, वेलकम। मेरे लिए भी आपके पास नाइस इसमें एक टॉकिंग टू छोटा सा यू। टिप है। सो जो आपका जो क्वेश्चन था जो आपने कहा लेंदी है, बट एक्चुअली दैट इज मतलब मेरे को इससे अच्छा प्लगइन नहीं मिल सकता ट्रिंकर के लिए। बट एक्चुअली दैट इज अ प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इंडिया में फेस कर रहे हैं। पिछले एक साल में पिछले साल अराउंड मई में इंडिया में 4 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स थे, हाँ और हाँ विद हाँ, इन एन ईयर इस साल मई में 6 करोड़ हो गए। वो मतलब 2 करोड़ लोगों ने 50%, 50% ऊपर चला गया वो 50% नंबर। ऊपर चला गया, सही बोल रहे हो। राइट। अब इसमें ना एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको, आपने बहुत सही एक प्रॉब्लम बोली कि कॉल्स हर जगह मिलती हैं, कि ट्विटर पे मिलती है, टेलीग्राम चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और हर जगह है। एंड जो नया इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज है कि उसे क्या करना है। वो रैंडमली कॉल मिलती है, फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करके, इन कॉल्स पे ट्रस्ट करके दे बाय आउट। दे डोंट नो उसमें कितना स्टॉप लॉस लगाना है, क्या कितना टर्म होल्ड करना है उसे। this is a genuine problem that pretty much all new investors face. नहीं है, मैं And बता रहा हूँ, मैं किसी किसी को जानता हूँ जिन जो मतलब yeah, मैं अपन उसे अगर यूएसएल बोलेंगे ना तो वो हाँ, उसे पता भी नहीं होगा कि वो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड है। मतलब आप कल को किसी exactly, को बोल दो नए बंदे को कि भाई यूएसएल खरीद ले, 20% तेरा बनना पक्का है, तो वो बिना हाँ, देकर वो यूएसएल सर्च करने लगेगा। मतलब वो right, है ना, मतलब ये चीज मैं देख हाँ, रहा हूँ कि मेरे साथ भी हुई है। मैं अपने आप को बहुत मैच्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज से कि नहीं, right, कोई कुछ भी बोले, मेरे को अपने सेक्टर लीडर्स के साथ ही चलना है। कि मैं सुबह उठ के कोलगेट यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कोलगेट लेना है। मैं सुबह चाय के साथ बिस्किट ब्रिटानिया का खा रहा हूँ तो मेरे मुझे ब्रिटानिया के साथ जाना है। मैं मैगी खाता हूँ, मुझे right, जाना है। तो मैं ये अप्रोच रखने का कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पता तो चले, नहीं तो क्या है कि अब right. मैं तो इस सेक्टर से हूँ नहीं, तो मैं तो दिन भर खोल के देख नहीं सकता। नहीं, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट जो आप कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली एन अप्रोच सजेस्टेड बाय पीटर लिंच इन हिज बुक वन ऑफ द वॉल स्ट्रीट। उन्होंने ये बोला था कि एक जो कॉमन इन्वेस्टर है उसको अपने आसपास ब्रांड्स को देखना चाहिए, एंड दे आर द वंस जो कि इस टाइप की चीजों को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़े इन्वेस्टर्स से भी। हम्म बट देन इसमें भी एक जो जेन्युइन प्रॉब्लम जो आपने पूछा भी क्वेश्चन, उसमें यही है कि एक पोर्टफोलियो अप्रोच जो आपने खुद भी बोला ये हम्म, होनी चाहिए। और एंड अनदर प्रॉब्लम यू फेस इज कि किसकी टिप्स लें। मतलब सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस लें ले, किसकी टिप्स सही है किसकी नहीं है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे फेक गुरुज भी भरे हुए हैं हाँ जी कि सही वो क्या बात है। करेंगे, ट्वीट करेंगे, कॉल देंगे, नहीं चली तो डिलीट, और हाँ चल जी, गई तो फिर तो वो उसको रिट्वीट। एक महीने तक उसी को है ना रिट्वीट करते हाँ, रहेंगे। तो करेंगे। तो एंड बहुत कम है, जैसे आरुष हमारे साथ हैं, ही इज अ जेम ऑफ अ ट्रेडर, यस यस जिनकी यस यस प्रूवन यस, ट्रैक इनकी रिकॉर्ड्स हैं। इनकी इनकी एक पिन ट्वीट है, अगर मैं है ना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। ग्रुप में जो हाँ, लोग हाँ, भी ट्विटर में है, आरुष के वॉल पे जाकर उसकी एक ट्वीट है 27 मार्च की 2020। हम्म, उसमें हम्म, उन्होंने, उनका बहुत लंबा ट्वीट है वो आप हम्म, सबको जाकर उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबको जाकर उसको पढ़ो। बहुत मतलब वंडरफुल लिखा राइट, है उन्होंने, वंडरफुल लिखा है। उन्होंने पूरे राइट, इकोनॉमिक साइकिल के बारे में उसमें लिख दिया है, बहुत सही लिखा है उन्होंने उसमें। राइट, एब्सोल्युटली। तो मैं ये कह रहा था कि हम नहीं, लोगों का द आइडिया दैट ट्रिंकर स्टार्टेड विद वाज टू आइडेंटिफाई सच जेम ऑफ अ ट्रेडर्स, जैसे कि आरुष हैं, या आरुष जैसे जो भी जो सच में वो टैलेंट रखते हैं, वो नॉलेज, वो विजडम रखते हैं। हाँ तो अब जी, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रिंकर एज अ प्लेटफॉर्म केम, जहां पे कि हम लोगों ने क्या किया, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज पब्लिक। ओके आपको जैसे ओके इवन जो आज का पॉडकास्ट का हम लोगों ने जो इशू किया था, उसमें आरुष के पोर्टफोलियो का लिंक भी है उसी पोस्ट में। ओके यू कैन गो टू ट्रिंकर। अभी आई थिंक आरुष ऐड करने वाले स्टॉक्स अभी तो खाली हैं, बट देन यू कैन स्टार्ट विद एज लेस एज 2000 रुपीज, अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं। ओके एंड देन आपको उनके पूरे पोर्टफोलियोज ओपनली दिखाई देते हैं, कि जैसे आरुष का पोर्टफोलियो, तो आपको दिखाई देगा कि उन्होंने करेंटली कितने रुपए के कितने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। तो आपको दिखेगा कि उन्होंने आईआरसीटीसी खरीदा है, तो कितने में खरीदा था, एंड ओके क्या ग्रेट। कि
एंड इतना ही नहीं, आपको जैसे आरुष ट्रेड लेंगे, हाँ आपने हाँ मान लो उसमें इन्वेस्ट किया, हाँ जी हाँ जी। तो आपको नोटिफिकेशन आते हैं कि अब आरुष ने कुछ खरीद, आपने उनके साथ खरीदा था, अब जब आरुष उसे सेल करेंगे तो आपको भी नोटिफिकेशन आएगा कि ये सेल कर दिया। अरे बहुत सही है ये तो। हाँ, और कुछ अगर बाय किया तो नोटिफिकेशन आया कि इन्होंने एक और स्टॉक अभी ले लिया है, तो इन्वेस्ट करते ही आप उनके साथ कॉन्स्टेंटली अपडेट्स आपको मिलेंगे। एंड द ग्रेट। बेस्ट पार्ट इज कि सिंस एवरीथिंग इज पब्लिक, आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो हर चीज वेरीफाइड रिटर्न्स हैं उस पर। ओके, मतलब इसमें आप लोग है ना इंडिया के बेस्ट बेस्ट ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई करके इसमें आप इनको जोड़ेंगे, उनके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे आप। हमने तो हर किसी के लिए ओपन किया हुआ है, बट पॉइंट इज कि जो आरुष जैसे एक्सीलेंट ट्रेडर्स हैं सिर्फ वही टॉप पे आते हैं, क्योंकि सिर्फ उनके प्रूवन रिटर्न्स हैं जो कि आपको 100+ रिटर्न्स दिखाई देंगे, या इतने अच्छे रिटर्न्स दिखाई करेक्ट देंगे। करेक्ट बाकी करेक्ट जो करेक्ट नॉर्मल है वो या तो आएंगे ही नहीं अपने ओपन करने, और आएंगे तो उनके रिटर्न्स नीचे होंगे, गिरे हुए होंगे। करेक्ट करेक्ट। आपसे बात करते करते मैंने डाउनलोड कर लिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट। आपके अच्छे रिटर्न्स बनेंगे तो मेरे को एक अच्छा सा 5 स्टार प्ले स्टोर पे भी चाहिए। अरे श्योर, डेफिनेटली ब्रो, मतलब पैसे बनेंगे तो क्यों क्यों नहीं। बिल्कुल आरुष, जब तक हमारे साथ हैं तब तक तो बनने ही है, राइट आरुष? Yes, yes, I'll try my best. बिल्कुल, आप तो पोर्टफोलियो बनाओ आरुष। अभी हम लोगों ने अभी कुछ जानने की भी कोशिश की आरुष से कि कौन से स्टॉक्स वो भी लेने वाले हैं पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा हिंट भी दिया है, मैं मंडे को ही फॉलो एरिस करूंगा लाइफ आपको। साइंस में वो एंट्री लेने वाले हैं। राइट, एग्जैक्टली, तो वो मैं तो उन्हीं से ही लूंगा। खुद लेने में मेरे को वो लगता है, आरुष पता नहीं कब निकलना होगा, अगर भूल मैं जाऊंगा। आपकी एक एक आरुष, आपकी मैग्मानी ऑर्गेनिक्स के लिए आपकी क्या व्यूज है? MOL? एमओएल, यस करेक्ट। Okay. MOL again is consolidating. I'll like to be bullish above 155. ओके 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 ओके, वो लोग कैपेक्स बहुत तेजी से कैपेक्स कर रहे हैं। यार कैपेक्स तो यार कितने लोग करते हैं, रिजल्ट कितनों को मिलता है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब चार्ट बताएगा तो कर लेंगे एंट्री। ओके, राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात है। एवरीथिंग इज विजिबल ऑन चार्ट्स। यस। ऑलराइट, सो थैंक यू सो वी मच। आर या थैंक यू शुभम फॉर बीइंग विद अस। हमारा टाइम थोड़ा कम होता जा रहा है, लेट्स टेक 2 more questions क्विकली। मुकेश, आर यू देयर विद अस? Yeah, I'm here. या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन मुकेश। Hi, Arif. हाय। I want to know your view about Deepak Nitrate and Mastech. Both are correct more than 20-25%. So still it's going on consolidation, or there is some possibility of up move reversal for at current level. So I would say Deepak Nitrite is a blown away theme, इतना ज़्यादा बढ़ गया and then the correction was massive from the top. I don't have a lot of I don't have a lot of optimism in this stock. Like it can retrace some of its moves, but very difficult to cross those very high valuation, high prices of 3,000 level. It will face a lot of resistance. If you're Okay. carrying in a portfolio and if you know hedging, then you can sell calls on the one side and you'll benefit from your stock holding from the other side. Okay. Okay. Yes. And about Mastech. Again, Mastec, I feel whole market as such is blown out of proportion, and as these stocks have started correcting, they can correct quite a bit. They'll take rest, and then they'll start a new rally. So you better manage your risk, put a stop loss, and if it goes beyond your stop, if it hits your stop loss, exit out of that stock. If it if it respects your price, then stay with that theme. It's simple. You have to follow this because after every bull market there comes a bear market, Okay. and Okay. look at this brief period wherein in 10 to 20 days stocks have come down by 30-40%. So you don't even need 6 months for that massive risk to come in your portfolio. It just takes 10 days, Hmm. right? So uh, so this will keep happening in 2003 to 8 in this bull market. In that bull market, again there was this brief period of correction, but that was massive. Like stocks used to correct, index used to correct 30 to 40% in just 1 month. 1 month, right? So Right. Right. again, this will happen in this market. Market will swiftly go up and then swiftly go down and again reclaim new highs. But
there might be stocks which will never ever come back to their new highs. You should always keep this in mind. You should keep your SL and ride the trend. Your Right. good stocks will give you return, definitely, and you can have a winning portfolio also. If a few stocks perform, 50% stocks also perform, you can have a winning portfolio. But if you let lose your 50% stocks, which turn out to be massive multi-bagger, not multi-bagger, then your portfolio would sink. So you should take care of that, and you'll do well. Okay. Thanks for your. Yeah. Thank you so much, Mukesh. Just one last question before we wrap up. Pooja, can you ask your question, please? Yeah, good evening, Harish. It was very nice listening to you. You are such an inspiration. एंड थैंक यू ट्रिंकल बहुत देर से वेट कर रही थी मेरे चार छोटे छोटे क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन ही हैं इफ यू डोंट माइंड Yes, फर्स्ट yes. क्वेश्चन Thank ये you. है Go ahead. हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कौन से ऐसे फेवरेट मतलब इंडिकेटर जैसे जैसे आप इन जनरल बताना चाहो कौन से लगाने चाहिए इंडिकेटर या जो आप लगाते हो मतलब कुछ एक इंडिकेटर्स होते हैं ना कि जो हम इंट्राडे या डेली में देखें तो हम स्टॉक मतलब वो कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे आप कौन से ज्यादातर लगाते हो अगर आप बताना चाहो तो थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखिए बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसा देखना है कौन से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, कौन से स्टॉक नीचे जा रहे हैं, बस इतना ही समझना है आपको। अगर जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको पकड़ लीजिए, जो स्टॉक नीचे जा रहा है उसको एग्जिट कर दीजिए। बस आप इतना प्रोसेस फॉलो करिए, आपको अपने आंसर खुद मिल जाएंगे। नहीं लेकिन आरुष जब हम ऊपर जाते हैं स्टॉक में अगर बाई कर लेना वो उसी पॉइंट से नीचे जाने लग जाता है तो स्टॉप लॉस फॉलो करके निकल जाइए। अच्छा मतलब हम सिर्फ ये देखें कि ऊपर की कैंडल्स बन रही हैं और हम बाई कर लें और उसके बाद उसमें स्टॉप लॉस लगा दें फिर करेक्ट। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप आरुष का पोर्टफोलियो फॉलो कर लो, आपका सब हाँ अपने आप हो जाने लगेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आरुष आपकी मतलब वॉच लिस्ट है कुछ है मतलब है या आप रोज नए मतलब आइडेंटिफाई करते हो बेस्ड ऑन योर सम टेक्निकल प्रिंसिपल्स या आपकी एक फेवरेट जैसे सबकी वॉच लिस्ट होती है ना कि हम इस 10-15 स्टॉक में ट्रेड करते हैं फिर हम उन्हीं को वॉच करते हैं और उसी में ट्रेड ढूंढते हैं मतलब आप पर्सनली जैसे क्या करते हो मतलब सर्च करते हो कुछ स्क्रीनर्स यूज करके या आपकी है कुछ फेवरेट वॉच लिस्ट देखिए आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैं तो सारे स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। मैं इक्विटीज में ट्रेड करता हूँ, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में करता हूँ, मैं ऑप्शंस में करता हूँ, मैं स्टॉक फ्यूचर्स में करता हूँ, स्टॉक ऑप्शंस में करता हूँ, करेंसीज में करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी में भी करता हूँ। तो मेरी कोई वॉच लिस्ट ही नहीं है। जीनियस हो आप तो हाँ, तो मेरा कोई स्पेसिफिक स्टॉक की लिस्ट ही नहीं है। जो स्टॉक अच्छा लगा उसमें चढ़ गए, जो स्टॉक बुरा लगा उसको शॉर्ट कर दिया। अच्छा ये भी ठीक है अच्छा लास्ट मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ, आप थोड़े थीम आइडेंटिफाई करो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आज थीम है, ये रियल एस्टेट का थीम पकड़ लो। ठीक है, रियल एस्टेट हैज मोर लेग्स ऑन द अपसाइड। तो उसमें प्रेस्टीज अच्छा हो गया, ओबरॉय रियलिटी हो गया, लोधा हो गया और ब्रिगेड हो गया। ये स्टॉक को आप पकड़ लो, आपके लिए मैं वॉच लिस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। इस स्टॉक को पकड़ लो, ये सारे स्टॉक ना अपसाइड मेरे को दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये अच्छा परफॉर्म करे। फिर फार्मा में एरिस लाइफ साइंस पकड़ लो। नहीं मैंने वैसे रियलिटी में डीएलएफ में ट्रेड किया था डीएलएफ पकड़ा हुआ था अच्छा है कमाई कराई थी फिर एग्जिट कर दिया अभी रिसेंटली 400 के पास और फिर उसके बाद दोबारा एंटर नहीं किया अभी तक राइट। सिर्फ अभी डीएलएफ कैसा है कि वो पुराने जमाने का पुराना स्टॉक है। अभी आपको नए जमाने के नए स्टॉक में आना पड़ेगा। जो ये सब नए प्लेयर है लाइक ओबरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब मैं आप करो, क्योंकि अभी पुराना जमाना गया। जैसे सन फार्मा था, सन फार्मा को चलता ही नहीं अभी सन फार्मा। राइट। मारुति पुराने जमाने का था, वो चलता ही नहीं। मतलब लीडिंग ऑफ प्रीवियस बुल मार्केट नेवर रन्स इन द न्यू बुल मार्केट। राइट। तो जैसे जैसे पावर की थीम भी बड़ी चर्चा में है तो जैसे पीटीसी आरईसी टाइप आपके मतलब उसमें है रडार पे पीटीसी अगेन थोड़ा सा मतलब उसकी बैंड बजी हुई है और वो चलता है नहीं। ये डीएलएफ टाइप के स्टॉक है जो डोंट हैव गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो वो तो नहीं है। बट न्यू प्लेयर्स लाइक टाटा पावर अच्छा है, और 2-3 ऐसे हैं। अदानी पावर तो अभी स्पेक्युलेटिव स्टॉक है, तो उसमें तो आप मोमेंटम राइड कर सकते हो। पर ये
पर ये जो नए स्टॉक, ये जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक है, REC, NTPC, ये सब अच्छे लग रहे, दे आर लुकिंग गुड। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये मत बताना कितनी कमाई है, जस्ट क्यूरोसिटी है कि जैसे कहते हैं ना अपना फर्स्ट ट्रेड हम नहीं भूलते हैं, फर्स्ट काफी हमारे लाइफ की चीजें होती है जो हम नहीं भूलते। आपका मतलब ऐसा ट्रेड जिसने आपको सबसे ज्यादा कमाई करवाई थी और ऐसा ट्रेड जिसने आपको सबसे ज्यादा लॉस करवाया था, सिर्फ नाम मतलब अगर बताना चाहो, कमाई पूजा, और आप तो मेरे क्वेश्चन, मैं होस्ट हूँ, आप मेरे क्वेश्चन पूछते जा रहे हो, इसके बाद नहीं, तो मेरी नौकरी चली जाएगी यहाँ पे। आरुष से इतनी बातें की मेरे को ऐसे जस्ट क्यूरियोसिटी हो गई कि पूछती होगी कौन सा मतलब किस में ट्रेड किया था जो सबसे अच्छी कमाई। राइट, ऑफ कोर्स। I got good money in Morpen Labs. अच्छा, और लॉस सबसे ज्यादा? लॉस तो होता रहता है छोटा मोटा इधर उधर रोज। बट ऐसा लॉस जो नहीं भूल पाए कि हाँ यार इतना बड़ा लॉस हो गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सारे इग्नोर करने लायक ही लॉस हुए आज तक? मेरे को लॉस हुआ था एक हिंद कॉम्पोजिट करके शेयर में था, किसी ने मेरे को बोल दिया था कि ये ले लो, मैंने उसको बोला चार्ट्स पे अच्छा नहीं लग रहा है, उसने मेरे को बोला ले लो, मेरे को अंदर की न्यूज है, ऐसा है वैसा है, मैंने उस स्टॉक ले लिया, फिर मेरे को उसमें बहुत लॉस हुआ। नहीं भूले ना, इसका मतलब नहीं भूलते हैं हम लोग, मतलब लॉस प्रॉफिट मतलब जो मैक्सिमम होता है ना वो याद ही रह जाता है। और जैसे फर्स्ट ट्रेड याद रहता है कि फर्स्ट ट्रेड किया था तो इसमें किया था, जैसे मैंने फर्स्ट ट्रेड यूनियन बैंक में किया था उस जमाने में जब वो 222 में था, और आज जब मैं उसका प्राइस देखती हूँ मैं सोचती हूँ ये 222 कैसे था यार उस जमाने, मतलब किस्मत की, तब तो प्रॉफिट में ही निकली थी, लेकिन उसके बाद नहीं, मतलब मैं तो हैरान होती हूँ। तो वैसे याद रह जाते हैं ट्रेड कितने भी, मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर हैविंग अ कन्वर्सेशन। थैंक यू पूजा। पूजा, आपने मेरी नौकरी खतरे में डाल दी है, मेरे साथी बोलेंगे इसको ही रख दो, मेरे को इसको हटाओ। अच्छा, नहीं लेकिन मेरी आवाज और बोलने का तरीका आप जितना अच्छा नहीं है, आपका तो बहुत अच्छा तरीका है। नहीं, आप उस दिन जॉय वाला नहीं, था आप और मैं मस्त बोलते हो। बैठी थी, मतलब रिक्वेस्ट सेंड करके, आपने एक्सेप्ट किया ही नहीं लास्ट तक। अरे नहीं, आप बिल्कुल कैसे नहीं करेंगे। टाइम, बस हम लोग का टाइम का शॉर्टेज रहता है, अभी हम लोग का टाइम खत्म हो रहा है, तो नहीं तो आरुष से बातें करने में तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मुझे भी और पूछने थे, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, अब आरुष की वैसे भी वो लग रहा है ना पानी वाली। आरुष आप पी लीजिए, आप इतनी देर से बोल रहे हैं ना, आपको खांसी हो रही है, गला सूख गया आपका। थैंक यू आरुष, एंड थैंक यू। ट्रिंकर थोड़ी ना नाम होगा आपका? मेरा नाम विशु है, विशु कार्तिक। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच पूजा। आरुष, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, आपसे बात करने में तो बहुत मजा आ रहा है। आई थिंक दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंसाइटफुल सेशंस जो हम लोगों ने होस्ट किया है, एंड थैंक यू सो मच हमारे